Okay, so continuing from last session onwards, थोड़ा सा theoretical part बाकी है and then we'll start with numericals. So let's see how energy this is distributed for different rolling bodies. So we have different bodies which are rolling on a plane. So we just want to know कि उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी है, कितना परसेंटेज रोटेशनल एनर्जी एंड सो ऑन सो फोर्थ. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर डिफरेंट रोलिंग बॉडीज. तो पहले हम लोग ले लेंगे बॉडी, फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वैल्यू, एंड यू आर सपोज टू नो दिस क्योंकि हमने कल ही लिया था ये. देन यू नीड टू नो व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. देन व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज, इफ यू रिमेंबर, इसका फॉर्मूला याद है आपको? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वन हाफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नॉट रोलिंग. आई ओमेगा स्क्वायर, आई था एम के स्क्वायर, तो आई एम बेसिकली इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सो दैट इज हाफ आई की जगह पे एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट. सो वी कैन राइट दिस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म क्योंकि हमको काम में आएगा. सो हाफ, it is half m v square k square by r square. Okay, then total is just addition of these two. Total is just addition of these two energies, and I would like to know what is the percentage of translational energy in total energy and what is the percentage of rotational energy in total energy. First type of body that we will see is a ring and cylindrical shell, because they have more or less same equations. So I'll just talk about ring first. Okay, so do you remember what was k square by r square for ring? It is easy. K square for by r square for ring 1. रिंग के लिए आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर. एम साइड में कर दो, जो बचा है वो के स्क्वायर होता है, मतलब के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1. व्हाट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग? हाफ एम वी स्क्वायर. व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग? हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 है. व्हाट इज टोटल एनर्जी? हाफ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशन इन total? Half, 50%. So you will be just solving this and you say 50%, or fraction wise आप बोलोगे तो half. So I am writing in terms of percentage. Then second type of body is disc and solid cylinder. So ring and cylindrical shell. Okay, ring and cylindrical shell, disc and solid cylinder, they are same more or less. Disc and solid cylinder का equation same बनता है. Do you remember k square by r square for disc? For a disc about its axis perpendicular to the plane, what was moment of inertia for a disc about an axis perpendicular to its plane? For half mr square. How do you find out k? m को अलग कर दो, r square by 2 it becomes 1 by 2 exactly. So see, you can do it easily. Easy है, 1 by 2, right? Good. What will be kinetic energy of translation? Half mv square. ये चेंज नहीं होता. What will be rotational kinetic energy? 1 by 4, क्योंकि k square by r square हाफ है, तो 1 by 4 mv square आएगा. एंड टोटल 1 by 4 plus 1 by 2, 3 by 4.
1/2 कितना होता है 0.5, 1/4 कितना होता है 0.25, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 0.75 मतलब 3/4. सो 3/4 mv². सो परसेंटेज वाइज अगर आप करोगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 कितना होता है 1/2 divided by 3/4. 1/2. See, 2/3. What is 2/3? 66%. तो बचा हुआ 34% रफली, या तो 66.6% बोल दो. बचा हुआ 33.3% इज rotational contribution to the total energy. Good. Then next was solid sphere, and remember these are the energy calculations on a horizontal surface. So the body is rolling on a horizontal surface, right? What is k square by r square for a solid sphere? Quick, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. 2/5 for a solid sphere. K square by r square is 2/5. So translation kinetic energy is always half mv square. What will be rotational kinetic energy? ऊपर फॉर्मूला बनाया है मैंने, half mv square k square by r square. Half mv square 1/5 mv square. Total will be 1/5 plus 1/2. 1/5 is 0.5, 1/5 is 0.2, 1/2 is 0.5, 0.2 plus 0.5 is 0.7, 7/10. 7/10. ये सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स अभी आप देखोगे आज. ये सारा हम लोग एग्जाम्पल्स ही सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली. सो व्हाट इज द contribution of translational kinetic energy to total? Half mv square divided by 7/10. 5/7 is how much in percentage wise? 5/7 into 100. 500/7. 71 के आसपास आता है वो. So it is 71.5%. And how much will be rotational then? 28.5. Okay. Last thing, that is hollow sphere. What is k square by r square for hollow sphere? Very good. This is always half mv square, and this will be rotational kinetic energy will be 1/3. नहीं, half mv square को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा. 2/3 और 2 कैंसिल हुआ तो टोटल विल बी 1/3 प्लस 1/2. 5/6. 5/6. What will be the percent of translation, contribution of translation to total? मतलब kt/t, k कितना आएगा? 3/5. What is 3/5? 60%. 6/10. That is 60%. So this is 60%. This will be 40%. So as you can see from this particular table, हर एक बॉडी अलग अलग टाइप का was rolling on a horizontal surface with the same velocity. V was constant for each of them. लेकिन हर एक के केस में the contribution of translation to the total is different. Assuming the radius of each body is same, फिर भी right, सब में मैंने आर आर लिखा है फिर भी, but radius of direction changes, k square by r square change होता है, right? So this is how you can find out what is the contribution of translation or rotational to the total kinetic energy. Easy table hai. And remember, we are not yet on an inclined plane. We are still on horizontal surface. So now it is time to go to inclined planes.
So we'll see how equation changes when you're talking about rolling on an inclined plane. Okay, so can somebody tell me, when you're talking about rolling motion on an inclined plane, अभी inclination कैसे भी ले लो, doesn't matter, you can take this way that way, एक ही बात है, right? So the body starts motion from top, initial velocity is 0 a, and it will finally reach over here with some velocity v. What is the first step that you do in this case? मतलब डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि व्हाट आर वी इंटेंडिंग टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी फाइनल फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, तो फर्स्ट आर टारगेट इज टू फाइंड आउट वी। तो कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे फाइनल वेलोसिटी v एट पॉइंट b? Do you know a? Do you know t? No. What we know about a rolling body, we may know its mass, we may know its radius of gyration, मतलब k square by r square पता होगा। What is law of conservation of energy? वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद है? वर्टिकल तो याद है, अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोगों ने v के इक्वेशन निकाले थे। टॉप मोस्ट पे सबसे कम अंडर रूट ऑफ आर जी, बॉटम पे अंडर रूट ऑफ 5 आर जी, मिड पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ 3 आर जी। ये फाइंड करने के लिए हमने क्या इक्वेट किया था? नहीं, यू आर राइट, हाफ राइट, यू आर नियर। Yes, मतलब what you say that total energies are always, total energy is always conserved. Logically भी सोचो, when the body is at point A, the only energy body possesses is potential. Why? Because it is not moving, मतलब there is no kinetic energy. This height is h, this length of plane is s, let us say. So at A you have only potential energy, and at B you have only kinetic energy. So you were right, but I wanted to know in terms of total, क्योंकि तुम ये अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्यों हुआ? क्योंकि काइनेटिक एट ए 0 एंड पोटेंशियल एट बी 0, इसलिए ऐसा आ गया ये, राइट? दैट्स व्हाई, सिंस kinetic at A is 0 and potential at B is 0. Correct. Good. What is potential at A? mgh. Angle of inclination, let us say, is theta. What is kinetic at B? Half m v square. गलत। कौन सा मोशन है? रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है? नहीं, रोलिंग में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन होता है, तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन होता है, राइट? तो एम जी एच इज इक्वल टू, व्हाट इज रोटेशनल? फटाफट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम के स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कैंसल कैंसल। तो v square is equal to, what I am going to tell you is very important,
इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समझेगा बाद में। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, है ना, टू गलती से कैंसिल किया मैंने ऊपर, आई वांटेड टू जस्ट कैंसिल आउट एम, तो ये और ये कैंसिल हुआ है। ओके, सो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो v is equal to under root of this, right? Correct. What is the velocity, final velocity achieved by an object if released from rest and covers a distance h? यहाँ पे रोलिंग की बात ही नहीं है, एक पत्थर को मैंने छोड़ दिया and that stone is actually covering a distance of h. What will be its final velocity? अंडर रूट ऑफ 2gh, क्योंकि क्या करते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u इज 0, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ah, 2gh मतलब v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, राइट? करेक्ट। इस केस में रोलिंग था क्या? नहीं, क्या था, सिर्फ ट्रांसलेशन, मतलब देयर इज नो रोलिंग पार्ट, मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टर्म विल बी जीरो देयर, राइट? गुड। इसका मतलब बेसिकली फाइनल वेलोसिटी इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ हाइट, इट डजंट मैटर ये जो s है ये 1 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर हो, फाइनली डिपेंड करेगा h पे सिर्फ, और h इज रिलेटेड टू s बिकॉज इफ आई टेक साइन थीटा इट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज h अपॉन s, करेक्ट? तो ये पता होना चाहिए कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो नीचे है दैट इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम rotational motion into this equation of v, right? और जो 1 है 2gh है that comes from translation basically. Anyways, अब we can find out acceleration also. 10,000 received on phone pay. Thank you so much. Yes, next is this. Sorry, it went into recording. I am sorry for that. Anyways, my next question was, how do you find out acceleration? Knowing v, how do you, v equal to, वो तो ये देगा अपने को। My question is, how do you find out acceleration? A is equal to v minus look at the diagram. Are we on inclined plane? Inclined plane है, एक बॉडी हमने रखा था लास्ट चैप्टर में NLM में on an inclined plane. It was coming down because of which component of acceleration? G sin theta. Excellent. तो याद कैसे रखते हैं अब? I don't want you to derive क्योंकि जरूरत नहीं derive करने की, हो सकता है derive but we don't need it. Acceleration. Any body coming down the plane is because of this component of acceleration. बराबर? Correct. Clear? उस केस में हमने रोलिंग लिया था क्या? फिर क्या था उसमें? स्किडिंग, स्लिपिंग था, करेक्ट? रोलिंग नहीं था, रोटेशन नहीं था। तो मैंने अभी बताया रोटेशन हो तो नीचे उसका रोटेशनल कंट्रीब्यूशन, ओके, करेक्ट? इफ देयर इज नो रोटेशन जस्ट g sin theta because the body is just skidding, राइट? अगर फ्रिक्शन हो तो क्या था? स्किडिंग में बोल रहा हूं मैं, रोटेशन नहीं बोल रहा हूं। म्यू cos थीटा। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके,
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, क्योंकि अब आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज यू ऑलरेडी नो इक्वेशंस और समझ के लिया है आपने, तो इट इज इजी. गुड. राइट, यहां तक हो गया. नाउ इफ आई वांट टू नो व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट, व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट, हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम ऑफ डिसेंट? मतलब ऊपर से नीचे आने तक का टाइम कैसे निकालोगे? v upon a. v is meter per second, a is meter per second square, v by a. राइट, ठीक है, करके देखते हैं. मतलब यू आर सेइंग v is equal to u plus at, u is 0, तो t is v by a. ठीक है, करके देखते हैं. t is v by a. what was v? do you remember equation? under root of 2gh upon 1 plus k square by r square. ये आपका आ गया g sin थीटा अपॉन 1 plus k square by r square. so this is equal to अंडर रूट ऑफ 2gh, और ये g जो था उसको मैंने अंदर डाल दिया, जी स्क्वायर. साइन थीटा को मैंने बाहर रखा. राइट, ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पावर में हाफ और नीचे 1. तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेज टू 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेज टू हाफ. ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी. और ये सॉल्व करोगे तो 1 माइनस हाफ, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. सो दिस इज हाउ यू गेट टाइम ऑफ डिसेंट, v by a. राइट, करेक्ट, गुड. याद रहेगा? नहीं नहीं, याद मतलब कैसे डिराइव किया. v याद है तो दैट इज सफिशिएंट. a याद है कि आपको g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सफिशिएंट. v नहीं याद है तो इक्वेट करो टोटल एनर्जी एट a इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b. करेक्ट. वैसे याद रहता है v इज अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. v में रूट आता है क्योंकि वो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as से डिराइव किया गया, तो v लूंगा तो स्क्वायर रूट आएगा. a में स्क्वायर रूट नहीं आता, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आता है. v बाय a करोगे तो आपको टाइम ऑफ डिसेंट मिलता है. गुड. तो नाउ वी शुड कंपेयर बाय टेबल. what we want to compare is we want to compare rolling motion, sliding motion and skidding. So let's write down type of motion. Figure I don't care, but anyways let's draw figure also here. Then we want to see what is the velocity, then we want to see what is acceleration, then we want to see what is time of descent. Okay, तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन आपको पता है, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है तो वापस नहीं कर रहा हूँ. इट इज जस्ट बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन. क्या था वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. एक्सेलरेशन g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. टाइम ऑफ डिसेंट 1 by sin theta 2h by g 1 plus k square by r square. ये टाइम ऑफ डिसेंट है बाय द वे. राइट. स्लाइडिंग. स्लाइडिंग मतलब स्लिपिंग, मतलब नो रोटेशन.
नो रोटेशन में मैंने बताया था क्या आता है ये 2gh, ये क्या आएगा जी sin थीटा। टाइम ऑफ सिर्फ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर को जीरो सेट करना है और कुछ नहीं है। इफ यू सेट k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जीरो तो क्या आया 1 बाय sin थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, सिंपल। देन फॉलिंग बॉडी मतलब सीधा सीधा इंक्लाइन प्लेन, ये जो हाइट h है यहां से ये बॉडी फॉल हो गया, क्या आएगा इस केस में सेम, ये क्या आएगा जी, ये क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, राइट, easy. Now one last important thing, yes बोलो। स्लाइडिंग में वेलोसिटी अंडर रूट 2gh कैसे आए, क्योंकि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जीरो है, बिकॉज देयर इज नो रोटेशन नहीं। हाँ, तो टाइम ऑफ डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो, v बाई a, v क्या है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन वेलोसिटी कैसे है, ओके। सो इन स्लाइडिंग मोशन वेलोसिटी कैसे आएगी, ठीक है। हमारे पास इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ पे एक बॉडी है विच इज कमिंग डाउन विदाउट फ्रिक्शन, बराबर, मतलब ओनली ट्रांसलेशन मोशन, मतलब ए पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh और बी पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, बराबर ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी क्या आएगा, हाँ तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अभी देखो प्रॉब्लम वेयर यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इज यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑन द प्लेन, वी आर equating in terms of energies. According to you, you are saying कि यहाँ पे g sin थीटा आता है, इसलिए आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा या करूंगी तो इट विल बी लाइक दिस, तो इससे भी आता है, कैसे आता है बताता हूं मैं, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू तो जीरो था, प्लस 2a जी साइन थीटा लिख दिया हमने, लेकिन ये मोशन कहाँ है, सरफेस पे ना, इंक्लाइंड सरफेस पे ना, एस लिख दिया, बराबर ना। व्हाट इज साइन थीटा फ्रॉम द डायग्राम, ये थीटा था, ये एच है, व्हाट इज साइन थीटा, एच अपॉन एस, हाँ तो ये साइन थीटा इंटू एस क्या बन जाएगा, एच, करेक्ट, क्लियर, बाकी लोगों को समझा, तो वैसे भी आता है, इट इज जस्ट दैट एस साइन थीटा बिकम्स h height of the initial point of motion, right? So good that you know you can equate from energies as well, and you can also do it from laws of kinematics equations, मतलब है ना, तो वहां से भी होता है, no issues, good. So last theoretical part, and we want to see what type of body we have, what is k square by r square, what will be its velocity, and you already know velocity is under root of 2gh1 plus k square by r square, because हम लोग यहाँ पे strictly we are in the domain of rolling motion, हम अभी skidding ट्रांसलेशन ये कुछ नहीं बात कर रहे हैं, जस्ट टॉकिंग अबाउट रोलिंग, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ गिवन टाइप ऑफ बॉडी, and ultimately what will be time of descent of a given type of body under root of 2h by g 1 plus k square by r squared. So you have a ring, k square by r square is 1, right?
What is V? Quick. GH. Very good. What is A? G sin theta by 2. V k square by r square 1 है, नीचे 1 plus 1 2 आएगा. What will be time of descent? 1 by sin theta. आगे 1 plus 1 2, 2 into 2 4, 1, हाँ वो भी चलेगा, या तो फिर अंडर रूट ऑफ 4h by g भी लिख सकते हो. ठीक है, इट्स अप टू यू. इफ यू वांट टू राइट 2 आउटसाइड, ठीक है, वो भी कर सकते हो. देन इफ आई हैव डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, हाफ. What is 1 plus k square by r square? 1 plus half, that is 3 by 2. 2 ऊपर गया, 4 by 3. 4 by 3 का अंडर रूट. दिस विल बी नीचे 3 by 2, 2 by 3 sin theta. 1 by 2 plus 1, 3 by 2, 2 2 cancel. तो अंडर रूट ऑफ, हाँ, अंडर रूट ऑफ 3h by g. राइट, सिंपल. नेक्स्ट, कौन सा बॉडी रह गया? सॉलिड स्फीयर. k square by r square for solid sphere is 2 by 5. 2 by 5. What will be V? 1 plus 2 by 5 in the denominator, that is 7 by 5. 5 ऊपर गया, 10 by 7. A 5 by 7. ठीक है. टाइम ऑफ फ्लाइट 7 by 10. 1 plus 2 by 5 is 7 by 5. ऊपर 2 है, 14. 1 by sin theta under root of 14 h by g. Okay. Hollow sphere V 6 by 5 है ना. नीचे 1 plus 2 by 3, मतलब 1 plus 2 by 3 मतलब 5 by 6. 6 ऊपर गया और ऊपर ऑलरेडी 2 था, तो करेक्ट, राइट, रॉन्ग, नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. फास्ट होना चाहिए, मैं कंफ्यूज करता रहूंगा. 1 plus k square by r square, 1 plus 2 by 3 कितना कितना के 5 by 3. 3 ऊपर गया तो 6. ये क्यों बता रहा हूं मैं, समझेगा. अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है, हमारे पास सेम इंक्लाइन प्लेन है, हाइट भी सेम है, सिर्फ अलग अलग टाइप के बॉडीज है. तो चारों में से कौन सी बॉडी का वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा एट द बॉटम? विच वन इज मैक्सिमम? विच वन इज मैक्सिमम? फोर बाय थ्री इज 1.33. 10 by 7 is 1 point. Which body will have the same, sorry, the largest value of velocity after reaching ground? Solid sphere, 10 by 7. What will be A here for hollow sphere? 3 by 5 g sin theta. What will be time of descent?
इजी है ना, 1 + 2/3, 5/3, तो 10/3 h/g, राइट। कैलकुलेशन थोड़े फास्ट करने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज विल बी डिफिकल्ट। तो आर यू कॉन्फिडेंट इनफ विथ व्हाट वी हैव लर्न सो फार? यस और नो? यस, रिवाइज करके आए पक्का? आकांक्षा, डिड यू सी व्हाट वी लर्न यस्टरडे? थोड़ा, you look confident because she is answering. Yes. So, just a minute. I don't know why this resolution goes off track. I don't want recommended setting. No. ठीक है, anyways. Starting from first question now. Center of mass of three particles of masses 1, 2, and 3 kg lie at point 1, 2, 3. And center of mass of another system of particles 3 and 2 kg lie at -1, 3, -2. Where should we put a third a particle of mass 5 kg so that the center of mass of the entire system lies at the center of mass of first system? हमारे पास पहला एक सिस्टम है जिसमें 3 मासेस है, उसका सेंटर ऑफ मास, मतलब मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूं आपको। सो यू हैव लाइक दिस, इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर हियर एट पॉइंट लेट अस से ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 1, 2, 3। फिर हमारे पास दो और बॉडीज है जिसका सेंटर ऑफ मास इज समवेयर एट पॉइंट बी, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है, सो नाउ वेयर शुड वी बी पुटिंग थर्ड मास which is 5 kilogram, not third but another mass 5 kilogram, so that इस पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट पे, पहले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे लाई होना चाहिए, करेक्ट? तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बताओ? हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? XCM, how do you find out XCM? OM, what is XOM here? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट XCM कैसे निकाला था कल? अच्छा, M1 R1 था क्या? अच्छा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ऐसा था बराबर? गुड। बट यहाँ पे तो पहले सिस्टम में 3 मास है, दूसरे सिस्टम में 2 मास है, तीसरे सिस्टम में और 1 मास है जो रखना है हमको। फिर ये M1 M2 M3 कौन सा ले? पहले सिस्टम के 3 मास, क्या पहले में से 1 और दूसरे में से 2? क्या करना चाहिए? नहीं पढ़ के आए, बिल्कुल नहीं देख के आए कल मैंने क्या करवाया है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो 3 मास का सिस्टम है, उन तीनों के टोटल मास को आप बोल दोगे M1, दैट इज द आइडिया हियर। मतलब M1 की वैल्यू कितनी हुई? कैन यू टेल मी? 1 + 2 + 3, 6 किलोग्राम हो गया, करेक्ट। अब आपको ये 6 किलोग्राम सिस्टम का सेंटर ऑफ मास दिया है, मतलब आपको XCM, YCM और ZCM दिया है, लेकिन किसका? पहले सिस्टम का।
तो x1 y1 z1 आपको दिया है, क्या है x1 y1 z1 1 2 3, तो x1 क्या मिल गया आपको 1। फिर अब मैं क्या करता हूं, ये जो दो मास का सिस्टम है इसके टोटल मास को बोल देता हूं m2, मतलब m2 कितना हो गया 3 and 2 5 kg, वेरी गुड। फिर इसका सेंटर ऑफ मास x2 y2 z2 दिया है, बराबर, क्या है वो -1 3 -2, बराबर। ओके, सो आपको मिल गया x2 की वैल्यू, तो आपको x1 y1 z1 मिल गया, x2 y2 z2 भी मिल गया, गुड। ओके, राइट। हमको तीसरा मास कहां रखना है, सच दैट द एंटायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शुड लाई एट पॉइंट ए, अगेन ऐसे ही बोला है ना, वेयर शुड बी पुट अ पार्टिकल ऑफ मास 5 सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, पहला दूसरा और तीसरा मिला के एंटायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शुड बी एट द फर्स्ट। तो बताओ हाउ डू यू सॉल्व दिस थिंग। अभी आधे से ज्यादा तो मैंने करवा दिया। व्हाट इज m3 बाय द वे, 5 kg, वेरी गुड, बराबर बोल रहे ना, 5 kg तो रखना है अभी, है ना, राइट। तो कैसे करेंगे अब बताओ। सेंटर ऑफ मास इनका जो आएगा नहीं, m1 r1 0 आएगा, r की बात ही नहीं है ना यहाँ पे, r कहाँ से आया। मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपने x1 y1 z1 लिखा है, ये x1 y1 z1 क्या है पहले वो बताओ। 1 kg 2 kg 3 kg का सेंटर ऑफ मास, बराबर। सिस्टम 1 का काम खत्म। सिस्टम 2 में मास कितना था 2 और 3 kg, मतलब कितना 5, उसका सेंटर ऑफ मास -1 3 -2, बराबर, करेक्ट है ना। थर्ड सिस्टम में कितने मास रखने हैं अपने को, एक ही रखना है, कितना 5 kg। कहाँ रखना है पता है क्या, नहीं पता, तो x3 y3 z3 ये पता नहीं है, लेकिन पहला सिस्टम जिसमें 3 मास थे, दूसरा सिस्टम जिसमें 2 मास थे और तीसरा सिस्टम जिसमें एक ही मास है, इस पूरे एंटायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, फर्स्ट पे है। मतलब बेसिकली आपको और एक चीज दी है, और आपको क्या दिया है, आपको दिया है x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास एंड z सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम इज अगेन एट पॉइंट ए, मतलब ये आपको दिया है। तो x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी 1, m1 कितना 6 kg, x1 कितना 1, ये ना x1 y1 z1 1, m2 कितना 5, x2 कितना है 3, m3 कितना है 5, x3 पता नहीं है, फाइंड करना अपॉन टोटल मास कितना हो गया 6 + 5 + 5 16। तो इसको सॉल्व करोगे तो 16 - 6 - 5, 16 - 6 - 5 5 होता है ना, 16 आ गया, ये 6 था, ये 11 है, 16 में से 11 गया कितना हुआ, अरे मैं सिर्फ ओके आई विल इंक्रीज अ स्टेप, एनीवेज छोड़ो, दिस इज 15 + 5x3। अब बताओ, अब बताओ व्हाट विल बी x3। 16 में से 21 गए, कितने आए, हाँ तो मैं वही पूछ रहा था, सिर्फ अलग तरीके से पूछ रहा था मैं, तो -5 = 5x3, तो x3 क्या मिला -1, बराबर। तो एक ही जगह पे -1 है, राइट, करेक्ट, yes or no, because someone online said option number D, why, how come option number D, look मैंने कुछ गलत किया है, exactly, very good,
यहाँ पे आएगा आपका -1 एंड ये घाई गर्दी में ऐसे गलती होती है तो ध्यान देना, ये आ गया -1 बराबर, हाँ -5 राइट। अब कितना आएगा बताओ, 3 आएगा। 16 -1 15/5 तो x3 इज 3, ऑप्शन नंबर डी। तो very small mistake can also change your answer, you need to know this। क्वेश्चन समझा है? पहले सिस्टम में 3 मास, उसका सेंटर ऑफ मास x1 y1 z1 दिया है। दूसरे सिस्टम में 2 मास, उसका सेंटर ऑफ मास x2 y2 z2 दिया है। तीसरे सिस्टम में 1 मास, उसका सेंटर ऑफ मास पता नहीं कहाँ रखना है, वो पता नहीं, x3 y3 z3 डोंट नो। पर तीसरा मास रखने के बाद पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट सिस्टम। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये रोटेशनल मोशन का पार्ट है, तो दिस इज इजी। द रिड्यूस्ड मास ऑफ टू पार्टिकल having masses m and 2m is what is reduced mass? At least do you know the formula of reduced mass? Denoted by mu. What is reduced mass of system? तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। What will be your assignment for today? Just to read what is reduced mass of a system. Easy है, बहुत simple concept है। Just read this. This is simple. m1 m2 upon m1 plus m2. What is m1? M into m2 is 2m upon 3m. So that is 2m by 3. Correct? Simple. सिर्फ रिड्यूस मास होता क्या पढ़ लो, बाकी फॉर्मूला तो यही है। गुड। तो यहां से आगे वी आर स्टार्टिंग विथ रोटेशनल मोशन नाउ। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग लीनियर मोमेंटम at position relative to origin O. Let L be the angular momentum of the particle with respect to origin. Which of the following equation correctly relates R, P and L? Yes, which of this relates R, P and L correctly? कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? What will be your strategy of solving this question? What is angular momentum? What is angular momentum? कल बताया था मैंने in terms of R bar and P bar. What is angular momentum in terms of R bar and P bar? R bar cross P bar. इक्वेशन में क्या दिख रहा है हमको ऑप्शंस में? dl bar by dt, मतलब क्या लेना पड़ेगा इस इक्वेशन का? क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव। So differentiating with respect to t, differentiating with respect to t, तो क्या आएगा? dl bar by dt, that is d dt of r bar cross p bar. Do you remember derivative of u into v? Okay, first as it is second का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये नॉर्मल केस में चलता है, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं चलता। क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों नहीं चलता? क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार इक्वल नहीं होते, इसलिए नहीं चलता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले का डेरिवेटिव लेंगे क्रॉस सेकंड एज इट इज प्लस
पहला वेक्टर एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव. ओके, देन आगे बताओ बताओ आगे क्या करोगे. व्हाट इज डी आर बाई डी टी क्रॉस पी बार. दिस इज एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद एक टॉपिक आता है आपको जिसमें आप टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेशन दोनों चीजें लिखते हो, वही है ये. What is dr bar by dt, by the way? Which physical quantity is dr bar by dt? Velocity. Excellent. V bar. What is momentum? mv bar plus r bar cross dp bar by dt. आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट में स्केलर पहले क्वांटिटी के पहले के साथ हो या दूसरे के साथ हो, यू कैन जस्ट टेक इट आउट कॉमन. क्यों मुझे बताओ. 1 into 2 into 3 ऐसा लिखा, या फिर 2 into 1 into 3 ऐसा लिखा, या फिर 2 into 1 into 3 ऐसा लिखा. doesn't make any difference. सबके सब 6 ही आएंगे ना. हाँ, तो फिर वो वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, मतलब स्केलर नंबर m तुम जहां चाहो वहां लिख सकते हो. तो मैंने m को बाहर निकाल लिया, मेरी मर्जी मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ भी करूं. राइट. व्हाट इज सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट. What is cross product of a vector with itself? 0. क्यों? साइन थीटा आता है डेफिनेशन में. ए बार क्रॉस ए बार इज ए साइन थीटा. थीटा इज 0 क्योंकि सेम वेक्टर है. साइन 0 इज 0, मतलब पहला टर्म 0. मतलब आपको मिल गया डी एल बाई डी टी इक्वल टू 0 प्लस आर बार क्रॉस डी पी बार बाई डी टी. राइट. तो ये प्लस आर बार क्रॉस डी पी बार बाई डी टी शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो डी एल बार बाई डी टी माइनस आर बार क्रॉस डी पी बार बाई डी टी इक्वल टू 0. Consider a particle of mass m having linear momentum at position related to origin O. Let L bar be the angular momentum of the particle. Angular momentum is r bar cross p bar. इक्वेशन में dl by dt दिखा तो मैंने डेरिवेटिव लिया और बस उसके बाद सॉल्व करते गए स्टेप बाय स्टेप. dr bar by dt cross p plus r bar cross dp bar by dt, and you just keep on doing things and done. तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी. नेक्स्ट, द force 7 i cap plus 3 j cap minus 5 k cap acts on a particle whose position vector r bar is I cap minus j cap plus 7 k cap. What is the torque? How do you define torque? कल बताया था ये भी. Torque in terms of cross product r cross f. How do you solve this r cross f? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते दो वेक्टर का. डिटर्मिनेंट फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप. फिर दूसरे रो में जो पहला वेक्टर लिखा है कौन सा है r, उसके कंपोनेंट्स 1 minus 1 plus 1 7 3 minus 5. करो तो सॉल्व. Do it. So options are wrongly printed. Why? Because just solving the first element कैसे करते हो. I cap पहला रो पहला कॉलम छोड़ देते हो, then you cross multiply. तो it is -1 into -5 is 5 minus 3 मतलब 2. Right? Correct. Minus j cap फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देते हो, -5 -7 -5 -7 -12. ठीक है. ओके. प्लस के कैप
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो 2i कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप, राइट। मतलब कहाँ गलती हुई होगी, गलती हुई होगी यहाँ पे ये 1 प्रिंट करने में। तो 2, 12 एंड 10। हाँ तो हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे इधर दैट इज द करेक्शन और दिस इज द करेक्शन, ठीक है। If options are wrongly printed, then you can mark any you want, you get marks. तो ठीक है, मेरा गलती से क्वेश्चन डाल दिया एग्जाम में तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। Next, the position vector of the particle is given by r bar and linear momentum is given by p bar. Angular momentum is, then its angular momentum about the origin is perpendicular to. How do you find out L bar? वही बताया था मैंने, क्या था L bar? L bar क्या था? R bar क्रॉस P bar। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। I कैप, J कैप, K कैप, उसके बाद R 1 2 -1, फिर P 3 4 -2, तो I कैप 2 into -2 is -4 minus and plus -4 plus 4 शून्य, माइनस J कैप क्या आएगा, -2 + 3, हो गया आंसर खत्म। वैसे K कैप क्या आएगा, 4 माइनस, है ना, 4 - 6, तो क्या आया, J कैप प्लस 2 K कैप। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम कौन से प्लेन में गया, J और K मतलब कौन सा प्लेन, J और K मतलब कौन सा प्लेन, YZ प्लेन को परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है, डायरेक्शन क्या होता है उसका, along x axis। Then its angular momentum about the origin is perpendicular to, मतलब ऐसा है कि ये आ गया x, ये आ गया आपका z, ये आ गया y। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, दैट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज हियर, हियर इन दिस प्लेन। एट ओरिजिन its angular momentum about its origin is perpendicular to। अगर एंगुलर मोमेंटम आपका yz प्लेन में है तो वो किसको परपेंडिकुलर है, x एक्सिस को। तो ऑप्शन नंबर है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। x, y and z, this is j cap plus 2k cap, it is perpendicular to x axis, right। अभी आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, नहीं गलत प्रिंट है ये भी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट टेंजेंट, तो यहां से यहां तक नहीं चाहिए, ठीक है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंट, क्योंकि अबाउट सेंटर ऑफ मास ये जो होता है I सेंटर ऑफ मास, ये होता है 2/5 mr²। अबाउट टेंजेंट तो आप क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, उसमें h = r डालोगे अबाउट o, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o इज ICM plus mh², so that is 2/5 mr² plus mr², मतलब 7/5 mr²। मैंने बताया था इसलिए कि ये सारे के सारे जो हम लोग टेबल बना रहे हैं, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। यस, टेल मी दिस, अ सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क,
of mass m, radius r, rotate about its axis. About its axis मतलब क्या होता है? This is solid cylinder. About its axis मतलब ये. Okay, with angular speed omega, its rotational kinetic energy is, फटाफट, what is rotational kinetic energy? Half I omega square. What is I for a solid cylinder through its axis? डिस्क के लिए क्या होता है? 1/2 हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर. तो क्या है? 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. खत्म. Two masses each of mass m are attached to the end of a rigid massless rod of length L. हमारे पास एक rigid massless rod है जिसका लेंथ L है. उसके दो एंड्स पे you have masses m at the both the ends. The moment of inertia of the system about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its length. पहले तो ये बताओ, where will the axis lie? Where is the center of mass? रॉड के सेंटर में, क्योंकि दोनों साइड पे सेम मास है m और रॉड का खुद का मास नहीं है. Since you have two masses at the ends of rod and these two masses are equal and rod doesn't have its own center of its own mass, तो दोनों इक्वल मास का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर पे होता है. यू कैन प्रूव इट. m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 वो करके आपको मिल जाएगा x equal to l/2. कर सकते हो y equal to l/2. तो ये आ गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट. देन the moment of inertia of the system about axis. What is moment of inertia? How do you find out moment of inertia in this case? I कैसे निकालोगे? इजी है. नहीं, ऐसा मान लो हमारे पास ये एक मास है m जो l/2 डिस्टेंस पे है. ये दूसरा मास है m जो l/2 डिस्टेंस पे है. इसको मैं मास नंबर 2 बोल रहा हूँ, इसको 1 बोलता हूँ. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी यस, करेक्ट. तो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरे का, यू आर राइट. I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू m r स्क्वायर, बट r इज l/2 का स्क्वायर. दो मास है, दोनों रोटेट हो रहे हैं. पहले का निकालो, दूसरे का निकालो, दोनों को ऐड करो. तो I टोटल विल बी 2 टाइम्स ऑफ I1 और I1 कितना है? ml/2 का स्क्वायर. क्या आएगा फिर? ml²/2. राइट. यू सेड ml²/2 ओनली. तो पहले का दूसरे का एडिशन था. सिंपल क्वेश्चन था. द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ a uniform rod of length L about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length. You have a uniform rod okay, and then you should always know what is the value of moment of inertia about center of mass for a rod perpendicular to the length of the rod. 12. very good. ml²/12 आता है. हमें क्या पूछा है? रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है. रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हो आप? I का इक्वेशन बनाते हो, उसमें से m हटा देते हो,
जो भी बचा वो के स्क्वायर होता है, राइट, करेक्ट। कहाँ से पूछा है? द रेडियस ऑफ वेरिएशन ऑफ एन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L about an axis passing through one end and perpendicular to length, मतलब they are asking you through this, through one end, यहाँ से। तो let me say this point over here is point O। कौन सा थ्योरम लगाओगी? पैरेलल एक्सिस, तो I0 will be equal to ICM plus MH square ML square by 12 प्लस ये टोटल लेंथ अगर L था तो ये लेंथ होगा L by 2। तो व्हाट इज दिस इज M L square by 4। व्हाट इज 1 by 12 plus 1 by 4? 1 by 3, क्योंकि तुम यहाँ पे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 12 हो गया, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 12, 4 by 12 इज 1 by 3, तो 1 by 3 मतलब ML square by 3, करेक्ट। ये आ गया। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करते हो इसको? रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, मतलब एम के स्क्वायर से, तो के स्क्वायर क्या मिल गया? एल स्क्वायर बाई 3, मतलब के क्या मिल गया? एल बाई रूट 3, एल बाई रूट 3। वो 1 दिख रहा है, दैट इज एल एक्चुअली, है क्या? ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, 9 का सी है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंपल है, provided you remember equations. Okay, which of the following has the highest moment of inertia when each of them has the same mass and same radius? इसलिए टेबल लिए थे। हमारे पास सेम मास सेम रेडियस की बॉडीज है, एक रिंग है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर? ये रिंग का केस है, mr square by 2, excellent। डिस्क अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, डिस्क के लिए mr square by 4। हॉलो स्फीयर के लिए 2 by 3। तो एक काम करता हूं मैं, डिस्क, रिंग एंड hollow sphere, ring, disc, hollow sphere, 2 by 3 mr square। And what about solid sphere? 2 by 5, very good। So which one of them is the largest? हो जाना चाहिए था अभी तक। 1 by 2 is 0.5, 1 by 4 is 0.25, 2 by 5 is 0.4, 2 by 3 is 0.66। hollow sphere about any diameter, correct, right? तो हमने जो theory किया, it was not theory in reality, it was all problems that we were doing। जाएं आगे। I will arrange a test in a way like fastest finger first, ऐसा कुछ करना पड़ेगा to increase your speed of calculation। सबको बिठा के I'll do that someday। An athlete throws a discus। What is discus? पहले तो ये होता है, देखो आई एम सॉरी टू से बट ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए जाता है। पहली बात तो डिस्कस क्या है पता नहीं, देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे बुक में डिस्कस को रिंग और बहुत सारे बुक्स में डिस्कस को डिस्क ऐसा ट्रीट करके रखा हुआ है, बट डिस्कस शुड बी अ डिस्क। तो लेट मी सी व्हाट यू कैन टॉक अबाउट, सॉरी व्हाट यू कैन से अबाउट डिस्कस। डिस्कस थ्रू, oh goodness,
right? Okay, so what do you think is this? It is a disk, correct? तो do not get carried away with, sorry जो ऑनलाइन थे स्क्रीन शेयरिंग आप नहीं देख पाए होंगे, but discuss should be taken as a disk. ओके फिलहाल अब तो नहीं लगेगा, लेकिन जब भी लगेगा आगे तब. An athlete throws a discus from rest to final angular velocity. Initial angular velocity 0. Final is 15 radian per second in time 0.270 second before releasing it. Okay. During acceleration, discus moves a circular arc of radius 0.810 meter. Acceleration of the discus before it is released. कैसे करेंगे सॉल्व? क्वेश्चन समझा है? क्वेश्चन वेट, इसलिए वो डायग्राम फिगर जरूरी है, तो जो ऑनलाइन है उनके लिए भी करना पड़ेगा. वेट अ मिनट. तो ये एक एथलीट है जिसके हाथ में डिस्क है और वो डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट किया है उसने. एक्सेलरेशन बिफोर रिलीजिंग इट मतलब क्या? डिस्कस एग्जैक्टली, डिस्कस थ्रो कैसे करते कभी देखा है आपने? ऐसा हाथ में डिस्क पकड़ते हैं, पहले खुद रोटेट होते हैं, ऐसा गोल गोल घूमते घूमते बाद में रिलीज करते हैं उसको, राइट? An athlete throws a discus from rest to a final angular velocity of 15 in some time 0.27. During the acceleration, disc moves. ये डिस्क जो है, मैंने मेरा हाथ घुमाया तो हाथ के साथ ही डिस्क भी मूव हुआ through a arc of radius 0.81. What will be acceleration of the disc? जोक है ये, एक्चुअली इट इज जोक, इट जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये. What is acceleration? A v minus u by t. What will be alpha then? Omega final minus omega initial by t. What is omega final? 15 by time is 0.270. बराबर, करेक्ट है क्या? राइट है, करेक्ट. 15 by 0.270, correct. What is A again? R into alpha. Why am I finding out A? Look at options. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बोला है क्या? अगर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बोला होता तो तुम्हें अल्फा फाइंड करना रहता. क्या लिखा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा? आर अल्फा लिखा है मैंने वहां पे. व्हाट इज आर? 0.810 into what is alpha? 0.270. 1 za 3 za 15 to 3 45 meter per second square. Option number A. राइट, करेक्ट. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ही था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको घुमा घुमा के चीजें दी है. तो यू नीड टू नो व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ एंगुलर मोशन, otherwise you will not be able to solve this question. Alpha omega final minus omega initial by t is equal to r alpha. That's it. और कुछ नहीं करना था. The angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration of the motor wheel is, what is rpm? मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है ये? फ्रीक्वेंसी, मतलब n है, ओमेगा नहीं. तो rpm या rps, this is n. What is 1200 rpm in rps? डिवाइड बाय 60, क्योंकि रिवोल्यूशंस पर मिनट है.
मैं इसको इसलिए कभी ऐसा लिखता नहीं हूँ, आई जस्ट राइट रेव पर मिनट, सो दैट इज 1200 by 60 because 1 minute and 60 seconds, rev per second, that is 20 rps. ठीक है, ये आपका क्या दिया है, इनिशियल। फाइनल क्या दिया है, 3120 है ना, बाय 60 कर देता हूं, कैंसिल कैंसिल, आरपीएस में आ गया, is a factor of 3, yes, 1 za 0 za 4 za 2 za 1 za and 52 za, 52 rps आ गया ये, 52 6 za 525 half and plus, correct, 312, करेक्ट। क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलेरेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन, अल्फा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन t. What is omega in terms of 2 pi n? 2 pi n final minus 2 pi n initial upon t. I will take out 2 pi common, n final minus n initial by t. 2 pi n final is 52 minus 20 upon time taken for all this process is 16 seconds. तो ये आ जाएगा आपका 2 pi 2 pi 2 pi 2 pi 52 माइनस 20 पता होना चाहिए 32, मतलब 4 पाई आ गया, खत्म। तो दिस इज 2 पाई 32 बाय 16 वन जा 2 जा, दैट इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। This question is only intended to make you understand that n is different and omega is different, that's it. A rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 kilogram and radius 40 centimeter. If the rope is pulled with a force of 30 Newton, then the angular acceleration in the cylinder will be, you have a cylinder, ये है आपका एक सिलेंडर के एंड्स, इस सिलेंडर पे आपने एक रोप को वाइंड किया है, समथिंग लाइक दिस, और ये जो रोप यूज की है आपने, इट इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, देन यू आर एक्चुअली पुलिंग दिस रोप विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, खींचोगे तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, एंड रोटेशन है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है। व्हाट विल बी अल्फा वैल्यू? ओके, सो इट इज इजी, व्हेन यू आर पुलिंग अ रोप that will be done in linear direction, मतलब F is equal to ma, correct, F is equal to ma, but a will be r alpha. You are supposed to find out alpha, that is F upon mr. F is 30, m 3, r is 4 into 10 power minus 2, 1 जा 10 जा, this is how much, 25, क्योंकि ये 100 ऊपर जाएगा, 10 पावर माइनस 2 ऊपर 100 होगा, 100 बाई 4, बराबर, करेक्ट है ना, यस नो, दिस इज 2.5 इंटू, राइट और नो, 250 आ रहा है ना आंसर, कहाँ गलती थी, 250 आ रहा है आंसर तो मेरा, कहाँ गलती की, 40 सेंटीमीटर क्या होता है मीटर में, अरे नहीं, 40 into 10, ठीक है, अब ठीक है, 1 जा 10 जा, ये 10 और ये 10, 100 by 4 is 25. This is easy method, that is good. There is one more way out. फॉर्मूला यही बनेगा, बट बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन, तो हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं कि रोटेशनल 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 है, तो जब रोटेशनल रोटेशनल दिमाग में रहता है तो फिर रोटेशनल की फॉर्मूला यूज करो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय आई, टॉर्क इज आर इंटू एफ, है ना, I is
एम आर स्क्वायर, बराबर। तो वही फॉर्मूला आ गया, एफ अपॉन एम आर। दोनों तरीके से आ सकता है, इज द सेम। सो यू जस्ट either find out alpha from formulas of rotational motion, or you can do F equal to ma, a is r alpha। तो दोनों तरीके से भी तुम कर सकते हो। गुड। grindstone, what is grindstone? old days, पत्थर का बड़ा सा चक्की, grindstone has a moment of inertia 6 kg meter square. A constant torque is applied and the grindstone is found to have a speed of 150 by 60 rps. मैं डायरेक्ट rps में जा रहा हूँ, pardon me for that, in 10 seconds, in 10 seconds, okay। Anyways, a constant torque is applied and the grindstone is found to have a speed of 150 rpm 10 seconds after the rest, ठीक है। The torque is, how do you find a torque? What is torque? अभी आपने बताया I into what? Alpha. What is alpha? Omega final minus omega initial, omega initial तो जीरो ही है वैसे भी, बाय टाइम, तो हो गया सॉल्व। ओमेगा फाइनल क्या होता है, 2 पाई एन एफ बाई टी। आई की वैल्यू 6, 2 पाई तो 2 पाई है, एन एफ कितना है 50, 150 बाई 60, 15 बाई 6, 15 बाई 6 इज 5 बाई 2। ये 5 बाई 2 है ना, 5 बाई 2 बराबर है, 5 बाई 2, 3 5 जा 3 2 जा 5 बाई 2। टाइम कितना था 10, 10 1 जा 2 जा 1 जा 10, 1 जा 3, 3 पाई न्यूटन मीटर, हो गया। सिंपल सिंपल सिंपल। अभी डिफिकल्ट पे आना है हमें, सिंपल सिंपल ले रहे हैं हम लोग, अभी है हमारे पास टाइम है। दिस मॉड्यूल इज लेस हेक्टिक, सो वी हैव मोर टाइम। A hollow cylinder of mass m and radius r rotating about its axis of symmetry, and a solid sphere of the same mass and radius is rotating about an axis passing through its center. If torques of equal magnitude are applied to them, the ratio of angular accelerations produced is, you have a hollow cylinder। hollow cylinder मतलब क्या होता है, रिंग। तो hollow cylinder और एक solid sphere, okay, about its axis of symmetry, about through its center of mass. What will be I for sphere? 2 by 5 mr square, very good। What will be I for disk? रिंग है ये, रिंग, mr square, mr square। हॉलो है इसलिए mr square, ये आ गया आपका। इफ टॉर्क ऑन रिंग, मतलब if you want to say hollow cylinder, and torque on solid sphere, they are equal, then the ratio of angular acceleration, what is torque in terms of alpha? I alpha, I alpha, तो मिल गया आपको अल्फा एच सी अपॉन अल्फा एस एस, दैट इज इक्वल टू आई एस एस अपॉन आई एच सी। आई एस एस आपने निकाला 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर, ये आपने बोला सिर्फ एम आर स्क्वायर ही है, तो आंसर आएगा 2 बाई 5, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो आई डोंट लाइक टू यूज दिस मेथड एट ऑल। मैं बोलता हूं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा है,
टॉर्क कांस्टेंट है, मतलब अल्फा एंड आई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Easy. Alpha 1 by alpha 2 is I2 by I1. I2 is solid sphere. 2 by 5 mr square upon mr square. Orally हो गया 2 by 5 खत्म. The instantaneous angular position of a point on a rotating wheel is given by theta. मतलब instantaneous displacement का है ये 2t cube minus 6t square. The torque on the wheel becomes zero at. How do you find out torque on the wheel first of all? टॉर्क कैसे फाइंड करोगे? टॉर्क का इक्वेशन क्या लिखा अभी हमने? हाँ, तो टॉर्क जीरो कब होगा? जब अल्फा जीरो होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो होने से रहा नहीं हो सकता ना, बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. करेक्ट. तो टॉर्क इज जीरो इफ अल्फा इज जीरो. गुड. व्हाट इज अल्फा? डी ओमेगा बाय डी टी. व्हाट इज ओमेगा? डी थीटा बाय डी टी. तो अल्फा क्या आ गया? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा. करेक्ट. हाँ, तो पहला डेरिवेटिव ले लो. इसी ओरली है ये, अगर डेरिवेटिव आपको आते हैं तो 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? 2 3t स्क्वायर बराबर ना. t रेज टू n का डेरिवेटिव n, t रेज टू n माइनस 1 माइनस 6t स्क्वायर का t स्क्वायर का 2t. ये आ गया आपका 6t स्क्वायर माइनस 12t. राइट. फिर आप लोगे सेकेंड डेरिवेटिव 6. व्हाट इज t स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2t माइनस 12, मतलब 12t minus 12. Right. This is alpha. Therefore torque is 0 if alpha is 0. Therefore 12t minus 12 is 0. T is equal to 1 second. टॉर्क जीरो कब होगा? जब I या अल्फा दोनों में से एक जीरो होगा. I अल्फा जीरो, I जीरो नहीं सकता. क्यों नहीं सकता? mr square. Can mass of a body be zero? No. Can r be zero? No. So alpha is zero. Alpha is what? d2 theta by dt square. तो दो बार डेरिवेटिव लो, जो भी मिलेगा इक्वल टू जीरो. ओरली है. क्यों ओरली है? 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर. पहले टर्म का पहला डेरिवेटिव हो गया 2t क्यूब, 6t स्क्वायर आ गया. दूसरे का माइनस 12t आया, तो 6t स्क्वायर माइनस 12t, ये फर्स्ट डेरिवेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो 6 इंटू 2t मतलब 12t, और 12t का डेरिवेटिव सिर्फ 12, सेकेंड टर्म का 12 आ गया. तो 12t माइनस 12 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1. ज्यादा फास्ट हो रहा है? नहीं? यस और नो? हाँ या ना? नहीं. ओके, ठीक है. इफ यू आर सेइंग नो, तो so starting with question number 26. Ball rolls without slipping, radius of gyration जो भी है k की वैल्यू है. What fraction of total energy is associated with rotation? मतलब आपको रोटेशनल एनर्जी याद होना चाहिए. And we have worked it out, half mv square k square by r square upon total energy is half mv square 1 plus k square by r square. half mv square ये कैंसिल हो जाएगा. k square by r square upon k square plus r square by r square. Cancel. Option number C. A wheel is at rest. Angular velocity increases uniformly and becomes 60 radian per second. तो दिस इज ओमेगा एफ 60 आफ्टर 5 सेकेंड. टी की वैल्यू 5 है. टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यू शुड नो. व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. तो कुछ भी नहीं है ये, ओमेगा इंटू टी. तो 60 इंटू 5 300. ऑप्शन नंबर सी. A wheel initially at rest is rotated with a uniform angular acceleration. Wheel rotates through an angle theta 1 in first 1 second.
t इक्वल टू 1 सेकेंड में आपका रोटेशन है थीटा 1, ओके, एंड थ्रू एन एडिशनल एंगल थीटा 2 नेक्स्ट 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम मैं लेता हूँ 1 प्लस 1, 2 सेकेंड में कितना एंगल हुआ, थीटा 1 प्लस थीटा 2, इन 2 सेकेंड से थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। व्हाट वी डू इज, पहले 1 सेकेंड में थीटा 1, फिर 1 सेकेंड में थीटा 2, तो टोटल 0 से 2 सेकेंड में थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऐसे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ये क्वेश्चन इन सर्कुलर मोशन, वी हैव डन दिस। सो इट टर्न्स आउट टू बी 3 सेकेंड। कैसे? इट इज सिंपल थिंग, you need to know uniform angular acceleration है, you have to find out using s equal to ut plus 1 half at square. You have to solve this because theta 1 is equal to u is 0, half at square, half alpha t square, but anyway alpha is constant, तो पता होना चाहिए that this theta 1 is proportional to t square। ऐसा सॉल्व करोगे तो theta 2 by theta 1, you have to solve this, proportional to t2 by t1 square। यहाँ पे थीटा 2 प्लस थीटा 1 लिख रहे हैं हम लोग, इसलिए ये आएगा 4 by 1, तो थीटा 2 प्लस थीटा 1 इक्वल टू 4, राइट। इसको सॉल्व करोगे ऑप्शन आ जाएगा 3, आता है वो। आफ्टर सॉल्विंग दिस इट टर्न्स आउट टू बी 3, आ गया, दिख रहा है यहाँ से, राइट। सो 3, देन 29th, get rid of everything here। Moment of inertia of a solid sphere of about its diameter. What is moment of inertia of solid sphere about diameter? 2 by 5 mr square. What is mass? Mass is volume into density, r square. What is volume? Volume is 4 by 3 pi r cube rho r square। 8 by 4 by 3 था 15, 8 by 15, ओके। करेंगे इसको आगे और सॉल्व, r रेज टू 5 तो आ ही गया, r raised to 5 rho, and pi की वैल्यू 22 by 7, 15 by into 7 is 105, 22 8 is 220 minus 44, 220 into minus 44 is 176, 176 rho r raised to 5, option number C। A ring of radius 0.5 meter and mass 10, radius दिया है, mass दिया है, rotating about diameter, ring rotates about diameter, ICM by 2, मतलब mr square by 2। उसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है, हाउ डू यू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी? इज सिंपल, I बताना चाहिए, दिस इज I। सो 0.5 का स्क्वायर 25 into 10 power minus 2 और into m कितना 10 upon 2, तो ये सॉल्व कर लो, दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल थिंग, 25 into 10 power minus 1, 12.5, 1.25, ये आ गया I। ओमेगा दिया है, यस ओमेगा दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है, I ओमेगा स्क्वायर बाई 2, I मिल गया 12.5 बाई 2, ओमेगा स्क्वायर इज 200, 20 का स्क्वायर 400, 1 जा 200 जा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कर लो 20 250 जूल, खत्म, simple, right? Then a disk and a ring of same mass are rolling if their kinetic energies are equal। kinetic energies are equal, कौन से kinetic energies are equal? kinetic energy total, because this is rolling motion। what is total kinetic energy of any body? half mv square 1 plus k square by r square, right? and they are telling you that these are equal, what will be the ratios of their velocity? ये भी joke है, if kinetic energies are equal for टू बॉडीज, पहले मैं करता हूँ रिंग और डिस्क का, निकाल लेता हूँ। फॉर रिंग, काइनेटिक एनर्जी फॉर रिंग हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस 1, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस 1, मतलब mv स्क्वायर आएगा सिर्फ। फॉर डिस्क, डिस्क है ना, राइट, फॉर डिस्क हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस 1 by 2, 3 by 2, 3 by 4, करेक्ट, राइट, राइट, रॉन्ग, जल्दी, हाफ mv square 1 plus k square by r square, 1 plus 1 by 2 for a disk, 3 by 2 into 1 by 2, 3 by 4 mv square। if these two are equal, I'll just equate these two। for ring, this is for ring, this is for disk, तो 3 by 4 mvd square, cancel, v ring, v disk by v ring बोला है, v disk by v ring बोला है, 2 by √3 ऐसा आएगा वो, correct, because it's just, you have to solve this, under root of 4 by 3, under root of 4 by 3, option number A। A wheel is rotating with an angular speed of
20 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई है, इट इज स्टॉप टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट टॉर्क इन 4 सेकेंड। आपको ओमेगा दिया है 20, आपको टाइम दिया है 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 0.20, वर्क डन पूछा है, वर्क डन बाय टॉर्क इन 2 सेकेंड। व्हाट इज वर्क डन बाय टॉर्क? हाउ डू यू define work done? This is what you should know. Do you know what is work done? Work done is what? By torque. What is work done by torque? नहीं, ठीक है, ये बताना पड़ेगा because you don't know formula. It is easy actually. So work done is just force into displacement anyways, right? तो आपको पता होगा, मैंने बताया था work done is force into displacement, तो force की जगह पे torque, displacement की जगह पे theta. Force into displacement, torque into theta, right? How do you find out torque? If it is given, आपको दिया है ओमेगा, व्हाट इज टॉर्क? देन हाउ डू यू फाइंड आउट? क्या क्या दिया है आपको? आपको दिया है ओमेगा, आपको दिया है टाइम, आपको दिया है आई। व्हाट इज टॉर्क? आई अल्फा, आई अल्फा इनटू थीटा। ये फाइंड कर सकते हो, यू हैव टू डू इट। हाउ डू यू फाइंड आउट अल्फा? यू शुड नो, ओके, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो सॉरी, so 32 you have to go through formulas. 33 is again simple. Angular momentum of rotating body is increased by 200%. Increase by 200% का मतलब क्या होता है? L1 अगर L था तो L2 3L होगा, L plus 2L, क्योंकि 200% से बढ़ा दिया आपने तो वो आ जाएगा 3L। काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ? काइनेटिक एनर्जी यू शुड रिमेंबर वाज L square by 2m if I am not wrong, 2I, P square by 2m, तो L square by 2I। बॉडी सेम है तो I कांस्टेंट है, K is proportional to L square। तो आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपको फाइंड करना था, यू हैव टू फाइंड K2 minus K1 upon K1 into 100। तो K2 is proportional to 3L square, मतलब बेसिकली यू नो 3L हो गया ना K2, तो K2 will be 9L square minus L square upon L square, 8 आ गया, 800% से बढ़ गया, राइट। देन नेक्स्ट, a flywheel of moment of inertia 0.32 is rotated at 120 radian per second by 50 watt electric मोटर। आपको पूछा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? दिस इज सिंपल, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपके पास ओमेगा है, आपके पास आई है, तो बहुत सिंपल है ये, इट इज हाफ आई इज 0.32 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 120, 144 इंटू 100। तो ये हो गया आपका 32 और ये आ गया आपका 1644, 144 इंटू 16, 144 इंटू 16 इज सिंपल 1440 और 1440 का हाफ 720, 1440 में 700 ऐड कर दिया, 2140 प्लस 2126, 2304 के आसपास आपका आंसर आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है, सब फालतू चीजें बाकी की। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम? सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, डिस्क के लिए स्पीड मैंने बताया था अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। डिस्क के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है हाफ, 3/2 ऊपर गया अंडर रूट ऑफ 4gh बाय 3, ऑप्शन नंबर बी। A sphere rolls down on an inclined plane, acceleration sphere का acceleration था a equal to g sin theta upon 1 plus k square by r square। sphere के लिए होता है 1 plus 2 by 5, मतलब 5, 1 plus 2 by 5, 1 plus 2 by 5, ये गलती होती है इसलिए 7 by 5, तो 5 by 7 g sin theta हो गया, ये खत्म। A ring, solid sphere and a disc are rolling down from the top of the same height, then the sequence to reach the surface is। सबसे ज्यादा जिसका स्पीड होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचने के लिए स्पीड पता होनी चाहिए। वी हैव मेड अ टेबल। रिंग, रिंग के लिए अभी आप लिखोगे यहाँ पे इट इज अंडर रूट ऑफ जी एच, और डिस्क के लिए अभी आपने फाइंड किया जस्ट नाउ, डिस्क बोला है यस, तो 4gh/3, और सॉलिड स्पीयर के लिए आपको पता होना चाहिए 1 प्लस, वो भी किया आपने, नीचे 7/5, ऊपर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 10/7 हो जाएगा, ये 10/7। सबसे ज्यादा वैल्यू सॉलिड स्पीयर की आएगी, तो सॉलिड स्पीयर विल रीच सबसे पहले, है ना, स्पीयर, फिर बाद में आएगा डिस्क, फिर बाद में आएगा रिंग, ऑप्शन नंबर बी।
A thin uniform circular ring is rolling down an inclined plane. Angle दिया है आपको पूछा है linear acceleration. A is equal to g sin 30. What is sin 30? Half g by 2. खत्म. Ball of steel rolls down theta. ठीक है. Rotational energy to linear energy. Rotational kinetic energy of a steel ball. Steel ball is a sphere. Rotational kinetic energy क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन लीनियर इज हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर कैंसल ये आप कैंसल 2/5 is the answer. The radius of gyration of a thin spherical shell hollow sphere is under root of 2/3 r. खत्म. About its tangent, yes, because about its diameter is under root of 2/3 r. Tangent में आप प्लस करते हो तो that is 2/3 और बाद में एक और 5/3 38. हाँ, along the inclined plane linear acceleration पूछा है 38. 1 plus k square by r square आ गया. कौन सा है? रिंग है. 2 आ गया तो 2 आ गया और ये 2 आ गया. g by 4 आ गया. Then तो स्पीड टेस्ट में ये स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी. नॉट